What was the reason why you picked this university? There were two benefits. Wrexham University is a #1 university in the Wales. कि यहाँ पे लोग आपका स्किल ही देखेंगे. For example, student A and student B. Student A ने एक टास्क करने में 20 minutes ली, पर student B ने सिर्फ 10.5 मिनट या 12 मिनट. Okay. तो वो क्या हुआ? टाइम भी बच गया, काम भी जल्दी हो गया. So hold on. I mean, going very fast. I think for all the students who are watching, we've never had anybody from Wrexham University. Okay. So that's also very valuable now. We're going to talk to Shivani about that. Our students are struggling. They want to know, how you did it. What made you choose that university? चेस्टर में ज़्यादातर जॉब अपॉर्चुनिटी भी थी, Wrexham में भी थी. Wrexham में अगर आपको यूनिवर्सिटी में भी अगर करना हो जॉब, तो वो लोग आपको अनपेड प्लेसमेंट जैसा होता है. What was the first part-time job you got? Why Wales? Why not London? Why not Leicester? अभी हम यहाँ लेस्टर में घूम रहे हैं. If you are looking to study abroad, then watch this full video and subscribe to our channel to stay updated. I've met a lot of people now over the last 2 weeks, but it has been such a great experience that everyone is so supportive and helpful, wanting to give back to more students who are looking to come. Yeah. And your husband is based where? He's in Chester. He's in Chester. Yeah, so I came here in 2022 Okay. to do my master in business administration, Okay, you came for MBA. MBA. Yeah, so I did So it with the before we know what you came to do here, we want to know a little bit about where are you from, and what were you doing back in India? Were you married when you came? What was your background? We want to know a little bit about. So it's from start to start. Yeah. I did my BSc in microbiology. Okay. So Where? I was a lab technician back in India. Where in India? It's in a town called Valsad. Valsad. And the main university is the VNSGU, which is very famous in Surat, Okay. Gujarat, Surat. So I did my bachelor in microbiology. I passed. I was working as a lab technician. Even I was taking, I was the teacher as well. So I was Okay. taking the classes for biology. Okay. At the same university? No, No. private tuitions. Private tuitions. Yeah. Okay. So I come from the family background, like where my grandfather, he was a politician. Okay. My father is a businessman. Okay. My uncle, he's a lawyer. Okay. So I come from the background like All kind of professional. all kind of professional backgrounds. Yeah. So when my father, he is doing the export of mangoes to Oh, Dubai. nice. So one day he was like, Shivani, would you like to come to Dubai? Because he do the Dubai, all the exports and imports. So I told him, Papa, one day if I get married, I'll go to somebody else's house. Instead of telling me all the things, instead of making me into your business, why can't you give this opportunity to my brother? He was like, okay, because I was there. I used to go to office. I used to look after the accounts with the Munshi ji. Okay. Yeah, so मुंशी बिल्कुल जी, एकदम अपना गुजराती बिजनेस हाउस है. हाँ, तो मुंशी जी के साथ बैठ के कैसे क्या हो रहा है, कहाँ कैसे पापा कर रहे हैं, किसके हाँ. किसके साथ कॉन्टेक्ट्स में हैं. हाँ. तो उनका मोस्ट प्रोबेबली जो कॉन्टेक्ट होता था वो सूरत से होता था, मुंबई से होता था. तो वहाँ से ज़्यादा उनका होता था. तो उसके बाद में पापा ने एक बार ऐसे बोला कि उनको एक बार बहुत प्रॉब्लम आई थी जब वो दुबई एक्सपोर्ट कर रहे थे. राइट. बिकॉज पापा इतना पढ़े नहीं है, तो उनके पास बिजनेस नॉलेज है. राइट. तो अभी क्या कि आपको कुछ करने के लिए आपके पास सर्टिफिकेट भी चाहिए. हाँ. तो उन्होंने फिर ऐसा बोला कि अगर मेरे पास डिग्री होती ना, तो आज मुझे ये दिन देखना ना नहीं पड़ता. तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि अच्छा ठीक है तू कुछ कर. तो मैंने कहा ठीक है, अभी साइंस स्ट्रीम में से मैं MBA करती हूँ, लेट्स सी आगे देखते हैं क्या होता है. So that's how you got inspired. Inspired, कि यार yes. मैंने BSc अपना कर लिया है. कर लिया है. But for being able to do like not be in the same situation as your father, क्या लगा यार डिग्री कर ली होती तो अच्छा होता. और बेटर हो जाता. तो अभी उनको लाइसेंस, उनके पास उनका खुद का लाइसेंस नहीं है एक्सपोर्ट के लिए. ओके. बीच में एजेंट है. ओके. तो अभी एजेंट है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है वो. राइट. तो उसके बाद में उनको अगर करना होता तो उनके पास डिग्री होती, लाइसेंस होता तो वो डायरेक्ट कर लेते. और लाइसेंस के लिए डिग्री चाहिए थी. लाइसेंस के लिए सर्टेन डिग्री. एजुकेशन बैकग्राउंड दिखाना रहेगा. हाँ, तो फिर उसके बाद में यही सब था. वो पॉलिटिक्स में भी है. मेरे अंकल जो है, मेरे चाचा, हाँ हाँ. वो खुद लॉयर है. पहले ऐसा था कि हाँ चलो फार्मेसी कर लेते हैं. अभी स्टार्टिंग में तो क्या कर ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले, ऐसा होता था. पर यहाँ पे आई, फिर शादी हुई, शादी होके फिर मैं यहाँ पे आई. So you got married in India यस. and your husband was already here in UK? नो No. नो. आप दोनों की शादी हुई, दोनों ही इंडिया में थे. हाँ.
and then you both decided to come to UK, यस और मेरे हस्बैंड जो थे वो एक्सपोर्ट मैनेजर थे इंडिया में, India में. हाँ. Okay. तो उनका भी वही थोड़ा अभी थोड़ा गुजराती बिजनेस माइंड उनका भी है पूरा. तो और उनके जो बॉस हैं हाँ. वो हैं गुजरात से ही, और उनका Okay. भी उनका भी बिजनेस यहाँ पे थोड़ा जो एक्सपोर्ट का होता है, उनके बॉस का भी यूके में है. UK में भी उनका बिजनेस था. हाँ. Okay. तो उनके क्लाइंट्स हैं. तो मेरे हस्बैंड ने बोला अच्छा ठीक है चलो तो फिर मैं जाता हूँ, देखते हैं वहाँ पे. हाँ. अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो बोल देना, मैं वहीं पे हूँ. हाँ. तो फिर हो गया ये सब, उनकी बातें हो गई. उसके बाद में तो आपके हस्बैंड का लिंकेज था यूके से, बिकॉज वो जिस कंपनी में काम कर रहे थे यस उनका यूके से लिंकेज था. उनका लिंकेज था. सो यू सेड कि, तो ही सेड कि यार अच्छा है चलो यूके में जा सकते हैं, हाँ, एंड देन हो सकता है वहाँ पर उन्हीं के साथ में कुछ कोई अपॉर्चुनिटी बन जाए, अपॉर्चुनिटीज मिल एंड जाए. एक्सपोर्ट की नॉलेज आपको भी है. तो आपके हस्बैंड ने डिसाइड किया कि यूके जाते यूके जाते हैं. आपकी शादी को कितना टाइम हुआ था तब तक? हमने ये डिसाइड शादी के पहले ही कर लिया था कि हमें जाना है. ओके. उसके बाद में ये डिसाइड हो गया. मैं आइल्स कर रही थी, आइल्स दिया, हो गया, बैंड्स आ गए. हाँ. पहले तो ऐसा था कि नहीं कनाडा जाएंगे. हाँ. भाई कनाडा का रिसेशन और वो सब देख के नहीं, बिल्कुल इच्छा नहीं है. इसके काम करते हैं यूके जाते हैं, यूके चलते क्योंकि हैं. यूके में को इन लोग का जो ब्रिटिश मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, इनका ब्रिटिश बिजनेस नॉलेज है, हाँ. वो आपको ज्यादा एक्सप्लोर करने मिलेगा यहाँ पे. राइट. क्योंकि यहाँ पे ज्यादा चीज जो होती है वो ऑफलाइन तो है ही, ऑफलाइन कर ही रहे हैं, पर इनका एकदम वे ही एकदम डिफरेंट है. हाँ. अगर मैं कुछ भी देखने जाऊँ, अगर इनका वे इंडिया से बहुत डिफरेंट है, है. बहुत ही. तो आपने डिसाइड किया दैट यू वुड वांट टू कम टू यूके. यस, And which course did you do, and did your husband also study? Which university? we came over here in 2022, as I mentioned before, September. So मैं यहाँ पे आई थी as a main applicant, Okay. and I did my MBA with advanced practice Okay. from Wrexham University, which is in Wales. In Wales, yes. Yeah. So I did there, and I did my masters. I passed with distinction. Awesome. Yeah. Thank you. I passed with distinction. I got the internship. I did my internship. While doing that internship, I got the job over there at the Okay. same company, and then I was working as a recruitment assistant. After that, I thought that no, I won't get any benefit. So hold from on. I mean, you're going very fast. I think for all the students who are watching, we've never had anybody from Wrexham University. Okay. So guys, that's also very valuable now. We're gonna talk to Shivani about that. We also not had anybody from Wales. Okay. So that's also we are going to talk to her about. And she very easily said, वो internship लग गई है, and then वो हो गया. So all of those are very important points. Our students are struggling. They want to know, how you did it. So, guys, let's take a small pause and let me tell you that I counsel hundreds of students looking to study abroad every month. And I am here to help you guys, not just with understanding your profile, which country or university is the best one for you, but help you through the admission process. And me and my team will get you your visa on time. And if you want a one-on-one counseling session with me, please go into the description. There is a link to my Calendly, and you can book a one-on-one slot with me. And let's get back to our video now. And you were there a little early, so you graduated 2023, 24 because you had advanced practice. Yes. So not so long, so like 1 year ago, 1 year right? ago. So your experience is very relevant for them. So it's Yes. not that it is very long ago. Yeah. थोड़ा धीरे-धीरे चलेंगे, है ना? So one is that राजधानी नहीं बना है। राजधानी नहीं बनेगी, आराम से पैदल चल रहे हैं, अच्छा मौसम है. हाँ. We'll enjoy this walk. Tell us that you came at a time where spouses were allowed to come. Yes. When you were choosing the university or what made you choose that university? Is it that it had certain benefits that you checked versus others? What was the reason why you picked this university? There were two benefits. Wrexham University is a #1 university in the Wales. It did came, वहाँ पे वेलिश बोली जाती है. Welsh. Welsh. So अभी जब मुझे इंग्लिश आती है, मैंने कहा कि why can't I explore the another language? वेलिश साथ में वेलिश भी मैं सीख रही थी. Is it very different from English? Very different. Okay. Very different, yeah. So वहाँ पे दो बेनिफिट है. अगर आपको यहाँ पे आके पढ़ना है, कुछ एक्सप्लोर करना है, तो मैं बोलूँगी जो आपने कुछ नहीं किया वो करो. Okay. जो आपने इंडिया में नहीं किया वो करो. वो करो यहाँ पर. हाँ, जस्ट शो योर स्किल. आप कैसे कर रहे हो, डिफरेंट वे में करो कि यहाँ पे लोग आपका स्किल ही देखेंगे. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी. स्टूडेंट ए ने एक टास्क करने में 20 मिनट्स ली, पर स्टूडेंट बी ने सिर्फ 10.5 मिनट या 12 मिनट. Okay. तो वो क्या हुआ,
टाइम भी बच गया, काम भी जल्दी हो गया, पता चला कि आपने ये टास्क इतनी जल्दी किया कैसे। सो उनको वो पता चला कि हाँ चलो इधर से इनको ये स्किल के थ्रू ये स्किल है इनके अंदर, टाइम हाँ। मैनेजमेंट। तो यहाँ पे एक चीज आ गई, टाइम मैनेजमेंट स्किल। तो वो आप कह रहे हो कि मतलब आपने काम जल्दी किया, बट आपको ये एक्सप्लेन करना रहेगा कि भाई जल्दी कैसे किया, बट वो एक स्किल से रिलेटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुक्के में हो गया। तुक्के में हो गया। So if you are able to show your skills, you are more employable. More employable. But coming back to Wrexham University, you said that it is a great university in Wales, and Welsh is something that is spoken. So that was actually something that knew you would have had to learn. Why Wales? Why not London? Why not Leicester? अभी हम यहाँ लेस्टर में घूम रहे हैं। लंदन बहुत पॉश है। हम्म। यहाँ पे कंपटीशन आपको तो मिलेगी, ज्यादा कंपटीशन मिलेगी, तो वहाँ पे कंपटीशन कम मिलेगी, और वहाँ पे आपको ब्रिटिश कल्चर ज्यादा एक्सप्लोर करने मिलेगा, Okay. जो कि आप यहाँ पे लोकल में रह के नहीं कर पाओगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत इंडियंस हैं यस, और वेल्स में नहीं है। वेल्स में नहीं है, वहाँ पे तो आप कह रहे हो स्टूडेंट्स वेल्स जो है वो अनएक्सप्लोर्ड है अभी, अनएक्सप्लोर्ड है, तो वहाँ बहुत लोग कम भी है। कम है, बट ऐसा नहीं कि वहाँ अपॉर्चुनिटी भी कम है। नहीं, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि अगर मैं मेरे खुद की बात करूँ तो हमारे कोर्स में ऐसा था कि हमें इंटर्नशिप खुद ढूंढना पड़ता है। हाँ, सब में जो प्लेसमेंट ईयर है उसमें आपको हाँ। ढूंढना तो खुद ही रहेगा। खुद ही ढूंढना रहेगा। Yes. और उसमें यूनिवर्सिटी ऐसी है कि यूनिवर्सिटी आपको हेल्प करेगी। यूनिवर्सिटी पहले ये देखेगी कि आप में कैलिबर है कि नहीं, कि आप ढूंढ पा रहे हो या नहीं। अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हो तब वो जाके आपको हेल्प करेगी, या तो फिर आपको वो दूसरा कुछ दे देगी जिसमें आपको यूनिवर्सिटी में जो यूनिवर्सिटी करवाते हैं वही करना पड़ेगा। ओके। तो आपका ऐसा क्यों करना है? अगर आपको जिसमें इंटरेस्ट है वो ढूंढो वो ढूंढो और हाँ। उसमें एक्सप्लोर करो। आपके अकॉर्डिंगली वेल्स अनएक्सप्लोर्ड है, आपके अंदर वो गुजराती एंटरप्रेन्योरियल इंस्टिंक्ट है कि यार जो सब्र कर रहे हैं हमें वो क्यों करना, हाँ, हम उससे कुछ अलग अलग करेंगे। ही करते हैं। एंड सो यू सेड कि ठीक है, अपने लोग जाते हैं वेल्स जाते हैं, हाँ, चाहे वेल्श सीखनी पड़ेगी, वो सीखते हैं, हम्म, एंड बट प्रोग्राम अच्छा लगते हैं। प्रोग्राम एमबीए लेते हैं, प्लेसमेंट ईयर लिया हाँ। एंड फाइट मार के प्लेसमेंट ईयर में जॉब भी ढूंढा। Yes. उस पे भी जाने से पहले वापस वेल्श पे आते हैं। Okay. हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू नो वेल्श? अगर आपको वहाँ जॉब चाहिए वेल्स के अंदर, हम्म, या विद इंग्लिश जॉब हो जाती है, या एंड कितना मुश्किल है वेल्श सीखना? वेल्स सीखना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर ही वो लोग आपको वेरी फर्स्ट डे बता देंगे कि हमारे पास एक ऐसी भी प्रोग्राम है जिसमें आप वेल्स सीख सकते हैं। तो अगर आपको सीखना है तो यू हैव टू पे दिस मच अमाउंट ओके। एंड यू कैन एनरोल इन दैट कोर्स। कितना अमाउंट था मोटा माटी? 20 पाउंड। 20 पाउंड। ओके। 20 पाउंड। Okay. और उसके बाद में वो हो गया। अभी कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं, मैंने यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई किया था एज प्रोफेसर असिस्टेंट और या तो रिसर्च असिस्टेंट। राइट। अभी उसके अंदर एक क्राइटेरिया आ जाती है, यू शुड नो वेल्स। अच्छा, वहाँ पे आप आके रिग्रेट करोगे, अगर मैंने कर लिया होता ना तो अच्छा होता। क्योंकि अगर वेल्श आती है हाँ, तो आपको रिसर्च असिस्टेंट या टीचिंग असिस्टेंट की जॉब भी मिल सकती जाती है। और वो तो कैंपस में बेस्ट है। यस, हाँ। इन कैंपस है आपको। हाँ। वहाँ पे अगर जरूरत है तो वहाँ पे प्रोफेसर्स हैं। और फैकल्टी से ऑटोमेटिक नेटवर्किंग फ्री में मिल रही है, यस, तो वो भी बहुत बढ़िया वो है। भी बहुत बढ़िया है। सो वेल्श सीखने में आपको कितना टाइम लगा? मैंने पूरा नहीं सीखा, हाँ पूरा नहीं सीखा मैंने। हाँ। पर मैं 1-2 वीक गई, हाँ उसके बाद मैंने छोड़ दिया। हाँ। मैंने कहा नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैंने वो छोड़ दिया, बीच में से ही छोड़ दिया मैंने। तो फिर वेल्श सीखने का, वेल्श तो आप सीखी नहीं फिर तो हमने। नहीं, तो इसीलिए उसके बाद में मैं जहाँ रहती थी हाँ वो वेल्स और इंग्लैंड का बॉर्डर है, ओके चेस्टर, जहाँ पे मैं रहती थी। राइट। और मुझे चेस्टर ज़्यादा पसंद आता था वेल्स से, क्योंकि वहाँ पे दूसरी लैंग्वेज ही पूरी बोली जा रही है, Right. जो मुझे कम समझ में आ रही है। राइट अगर हम छोटा बच्चा भी होता है तो उसको स्टार्टिंग से सिखाना पड़ता है लैंग्वेज। राइट। इवन इफ आई स्टार्ट लर्निंग फ्रेंच, I have to start from ABC and from zero. So I Right. don't have that much time to do that. ओके। Because I was doing my internship, I was doing my part-time job, I was doing my university and the research. राइट। Where would I put my time for learning the new language? आप कह रहे हो कि अगर कोई पहले से सीख के अगर आता है वेल्श तो उसको बहुत एडवांटेज होगा। बहुत एडवांटेज तो कुछ वेल्श में बताओ ना यार, कुछ मतलब बोलो कुछ तो हमें पता चलेगा। माय नेम इज, कुछ तो बताओ। हाँ। नहीं, मैं बोल ही नहीं पाऊंगी। अरे नहीं, बोल सकते हो। नहीं नहीं, मैं बोल ही गुजराती नहीं सब पाऊंगी। कर सकते हैं। गुजरात नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल कि सभी कर सकते हैं, पर नहीं,
कुछ चीज़ है जो नहीं, इसीलिए Okay. मैंने बीच में से ही ड्रॉप आउट कर दिया था पहले। आपने इसलिए आप जब आप रेक्सम में थे तो आप चेस्टर में रह रहे थे या फिर आप रहते वहीं थे यूनिवर्सिटी के पास? नहीं, मैं चेस्टर में रहती थी। आप चेस्टर में रहते थे? मैं चेस्टर के स्टूडेंट एकोमोडेशन में रहती थी। चेस्टर यूनिवर्सिटी और चेस्टर के स्टूडेंट हाँ। एंड वहाँ से कितना दूर होता था आपका यूनिवर्सिटी? 15 मिनट 15 मिनट्स 15 मिनट्स बाय ट्रेन। बाय ट्रेन। Yeah. एंड आपको वहाँ पर आपके हस्बैंड कहाँ रहते थे उस टाइम? वो मेरे साथ ही साथ ही रहते थे। साथ स्टूडेंट में। अकोमोडेशन में ऐसे हस्बैंड हाँ। वाइफ का अकोमोडेशन हाँ। मिल जाएगा। हाँ, तो वहाँ पे उस हिसाब से हम रहते थे। और चेस्टर में ज़्यादातर जॉब अपॉर्चुनिटी भी थी, एग्ज़ाम में भी थी। एग्ज़ाम में अगर आपको यूनिवर्सिटी में भी अगर करना हो जॉब तो वो लोग आपको अनपेड प्लेसमेंट जैसा होता है, तो वो भी आपको हेल्प करते हैं देने में। So like an internship for building skills, although it might be unpaid. Yes, it will be. Over here in the UK, internships are always unpaid. Let's get into the professional success. So if you like this content, please subscribe to our channel and I will see you all in the next video. What was the first part-time job you got? Which company? What type of part-time job did you get? Let's go. So when I was a student, I was allowed to work only 20 hours. Yeah. So during that time, I was working in the Domino's.